Hello student, today I am going to teach you painting chapter number 7. Cubism, Surrealism and Abstract Art. Cubism is a style of painting and sculpture that began in Paris in about 1907. It was the most important trend at the beginning of 20th century. Cézanne was the pioneer of Cubism. He said everything in nature must be treated as a cylinder of spheres. The important artists include Picasso, Breguet, and Leger. They particularly choose subjects like still life, landscape, and portrait, and the modify in their work were broken up into small parts. The aim was to give an importance to constructions but not the emotions. The purpose was presenting the form, not richness of color in terms of geometrical shapes. Form became increasingly abstract and generalized. By 1920, this art movement came to an end. क्यूबिज्म मीन्स हिंदी में हम उसे कहते हैं घनवाद चित्रकला एवं मूर्ति कला की एक शैली है जो लगभग 1907 में पेरिस में प्रारंभ हुई। 20वीं सदी के प्रारंभ में यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। सेजान घनवाद का पुरोगामी नायक था। उसका कहना था कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु को बेलन या गोल ही समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इस युग के महत्वपूर्ण कलाकारों में पिकासो, ब्रक एंड लेजे गिने जाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से जड़ पदार्थों, प्रकृति के दृश्यों तथा रूप चित्रों को अपने चित्रों का एक विषय बनाया तथा उन कला चित्रों को प्रेरक बिंदु छोटे छोटे अंशों में विभाजित किए गए। कलाकार का उद्देश्य मुख्य रूप से संरचना पर जोर देना था, भावनाओं पर नहीं। उनका उद्देश्य आकार पर जोर देना था, ना कि ज्यामितियों पर या आकारों में प्रयुक्त रंगों की गहराई पर। आकार अत्यधिक अमूर्त तथा समान होते गए और 1920 तक कला का यह आंदोलन समाप्ति पर आ गया। Surrealism was another movement which started in 1924 and continued till 1955. The Surrealist artists tried to use the images of the unconscious in their work. The Surrealists considered themselves representatives of new outlooks, mainly influenced by psychoanalysis. It originated as a revolutionary movement resulting from the Dadists in revolt. Giorgio de Chirico and Salvador Dali were the most famous surrealist painters. इसे हम अतिथि या अति यथार्थवाद एक दूसरा आंदोलन था जो 1924 में प्रारंभ हुआ और 1955 तक चला। अति यथार्थवादी कला के कलाकारों ने अचेतना मन की कल्पना को अपनी कला में प्रयुक्त किया। ये कलाकार अपने को नई विचारधारा के प्रतिनिधि मानने लगे। ये नई विचारधारा को मनोविश्लेषण द्वारा प्रभावित मानते थे। दादावादी विद्रोह के फलस्वरूप इस क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ और जॉर्जियो डे और चिरिकी तथा सल्वाडोर दली इस विचारधारा के बहुत प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। अमूर्त कलाकार व्यक्तिगत अभिव्यक्ति विहीन कलाकार के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है। ये एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से जो समानकालीन संसार को वास्तविक रूप में चित्रित करने के लिए कलाकार तैयार नहीं थे। इसका प्रारंभ 1910 में हुआ और
इसको हम कहते हैं आगे abstract art is a general term for representational art, an art form that reject the depictions of the contemporary world in a realistic way. It started in the year 1910. The pioneer of the abstract painting are Candistic, Delrone and Modiglian. They try to give a picture from to depict abstract ideas which is not possible to represent in a realistic method. So जो अमूर्त कलाकार के पुरोगामी कलाकारों में कंडिस्टिक और डेलोरोने और मोडियन को गिना जाता है। इन कलाकारों ने अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देने के लिए चित्रों के रूप में स्वरूप देने का प्रयास किया, क्योंकि वास्तविक रूप में उन्हें दर्शाना संभव नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, मैन विथ वॉयलिन। स्टूडेंट्स सी दिस पिक्चर, मैन विथ वॉयलिन। Man with Violin title and medium oil on canvas, date 1912, artist Pablo Picasso और फिलाडेल्फिया का कलाकार है, ये आर्टिस्ट है। See this general description. Pablo Picasso was born in 1881 in Malaga, Spain. He was a painter, sculptor and ceramist. Throughout his long career, Picasso followed the principle of abstract compositions. He was highly influenced by symbolize. He developed his own style in Paris during his Blue period, 1900-1902. Named from the blue-green tone of his canvas, Picasso developed his Rose period in 1905-1907. In this period, he used mainly pink color in his painting. After this painting, his work were influenced by the African artifact. From 1915, Picasso developed his Cubist phase, which made him famous world over. Cubism is basically the breaking of three-dimensional form into flat area of pattern and color, overlapping and linking so that shapes and part of the human body or objects are seen from the front and back at the same time. So पब्लो पिकासो का जन्म जो है 1881 में स्पेन की मलगा शहर में हुआ था। वो चित्रकार, मूर्तिकार के साथ साथ जो है शिल्पी भी थे। अपने लंबे जीवन काल में पिकासो ने अमूर्त रचनाओं के सिद्धांतों का अनुसरण किया। वह प्रतीकवाद से बहुत प्रभावित था। नीली कला अवधि या ब्लू पीरियड जिसे बोलते हैं 1900-1902 के दौरान पेरिस में उसने अपनी शैली इजाद की या चलाई। नीली कैनवस पर नीले तथा हरे रंग के कारण यह नाम दिया गया। पिकासो ने अपनी गुलाबी कला अवधि में 1905 से 1907 काफी प्रगति की। इस समय के दौरान उसने मुख्य रूप से अपने चित्रों में गुलाबी रंगों का प्रयोग किया। इसके बाद उस पर अफ्रीकन कला का प्रभाव देखा गया। 1915 से उसने अपने घनवादी समय का विकास किया, जिससे उसे विश्व स्तर पर ख्याति मिली। घनवाद में मूल रूप से त्रिविधी आकारों के स्थान पर चौरस
नमूनों तथा रंगों के द्वारा चित्र बनाए गए। उन चित्रों में रंग एक दूसरे रंग को आंशिक रूप से ढक लेते हैं। इस प्रकार के अच्छेदान से विभिन्न आकार तथा मानवीय शरीर या वस्तुओं को आगे पीछे से एक ही समय में देखा जा सकता है। Man with Violin was painted in 1912. It is a fine example of analytical cubism. Objects were divided in two parts depicting different viewpoints at the same time. Like any other painting of this period, forms are recognizable, but broken down into cube-like form. Picasso tried to use space in a new way. The human form holding the violin is broken into various geometrical shapes and then arranged together. The colors used are typical of this period, using the shades of browns and green. Most of these paintings during this period were made with similar technique and colors. In this painting, there is a continuous unit of form and colors. For him, reality had a different definitions. He defined reality in a sense more real than that of nature. His brilliant and unusual way of handling paint and other material made him most admired artist of the 20th century. He is one of the best work in Guernica based on Spanish Civil War. मैन विथ वायलिन चित्र को 1912 में चित्रित किया गया। ये चित्र घनवाद के विश्लेषणात्मक अध्ययन की अच्छी मिसाल है। वस्तुओं को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया गया तथा एक ही समय में चित्र में अन्य विचारों को भी दर्शाया गया है। इस युग के अन्य चित्रों की भांति विभिन्न चित्र आकारों को पहचाना जा सकता है, परंतु सभी आकार घन के रूप में परिवर्तित हो गए। पिकासो ने आकार को एक नए तरीके से प्रयोग किया है। मानव प्रकृति जो हाथ में वायलिन पकड़े हुए है उसे विभिन्न आकारों में परिवर्तित कर दिया गया है और फिर टुकड़ों में इकट्ठा किया गया है। इस चित्र में जो रंग इस्तेमाल हुए हैं वे इस युग के प्रतिनिधि रंग हैं। भूरे तथा हरे रंग का मिश्रण एक रंगत ही देखते ही बनता है। इस युग में पिकासो के अधिकांश चित्र इसी प्रकार की तकनीकी तथा रंगों से चित्रित किए गए। उसके अनुसार यथार्थ की परिभाषा दूसरी ही है। उसने यथार्थ को अपने तरीके से परिभाषित किया है। उसके अनुसार यथार्थ या सचमुच प्रकृति से भी अधिक यथार्थ है। रंगों तथा अन्य साधनों के कुशल और साधारण प्रयोग ने उसे 20वीं सदी का सर्वप्रिय कलाकार बना दिया है। उसके सर्वोत्तम चित्रों में ग्युयेनिक कृति है जो स्पेन के गृह युद्ध पर आधारित है। सो स्टूडेंट, थैंक यू।